السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ پاک بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں بوجھ سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ پاک کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتی ہیں، جبکہ اللہ پاک کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ پاک کو۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں اور مشکلات ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ اب اس کے دین میں قدم رکھ لیا تو اب اسے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائش نہیں آئے گی، اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے جب انسان دین پر قدم رکھ لیتا ہے، جو بندہ سب اللہ پاک کے راستے پر چھوڑ کر چل پڑتا ہے، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پاک پر کتنا یقین ہے۔ پتہ ہے جب انسان اللہ پاک سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ پاک سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل سارے پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے، جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتی وہ اللہ پاک کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ پاک کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو مشکلات میں بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے، ایسا انسان جو اللہ پاک کی طرف سے آنے والی ہر چیز اس کی رحمت سمجھتا ہے، چاہے پھر وہ خوشی ہو یا پھر آزمائش۔ یہی فرق ہے انسان کی اور اللہ پاک کی محبت میں۔ تم کیوں ہار مان رہے ہو؟ تمہارے پاس اللہ پاک ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ۔ یاد رکھیں کہ آپ جتنی بار اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کی تقدیر پر اتنی بار بدل دی جاتی ہے۔ اگر دعائیں قبولیت میں دیر لگا رہی ہیں تو مایوس ہونے کے بجائے درود شریف اور اپنی دعاؤں کی مقدار بڑھا دو۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے، وہ نہ امیدیں سے یوں امید نکال لے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک کے در سے مدد جلد تم تک پہنچنے کی معجزات کی صورت میں اللہ پاک کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانواز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرض سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نہ امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ کیا پتا تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ پاک نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ پاک کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ بہت قریب ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ پاک سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ پاک دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔
और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। तुम तब भी दुआ करते रहना जब तुम्हारे पास कबूलियत की कोई भी वजह बाकी न रहे, क्योंकि बेबस सिर्फ तुम हो, अल्लाह पाक नहीं। वो तो पल भर में नसीबों को बदल सकता है। अल्लाह पाक को बहुत पसंद है जब इंसान हजार गुनाह के बाद भी उसकी तरफ पलटता है। देखें, अगर आप यह मालूम करना चाहते हैं कि आप अल्लाह पाक के नजदीक किस मुकाम पर हैं, तो फिर देख लो कि अल्लाह पाक ने आपको किस काम में मसरूफ किया हुआ है, तो बस वही आपका मुकाम है। रब सबको देता है, वो किसी को इनकार नहीं करता, लेकिन रब उसके लिए खास एहतमाम करता है जिसने उम्र भर अपने रब के लिए एहतमाम किया हो। रब बहुत शर्म और हया वाला है। जिस बंदे ने सारी उम्र किसी की मदद करने से इनकार नहीं किया, रब उसे कैसे इनकार करेगा। जिसने अल्लाह पाक की मोहब्बत के लिए बंदों से मोहब्बत की, उनके लिए आसानियां पैदा की, रब उस बंदे के खुले हुए हाथों को अपनी मोहब्बत से भर देगा जो साकिन में से हो। और फिर ऐसा बंदा अपनी जरूरत अपने रब को बताए तो रब कहे कि ऐसा साबिर और साकिर बंदा हाथ फैलाकर बैठा है, उसके हाथ गिरने से पहले उसे कबूलियत से नवाज दिया जाए। याद रखें कि दुआ एक इबादत है और उसका वजू हमारी बंदगी है। अपनी बंदगी में कमाल को पहुंच जाएं और दुआओं की कबूलियत के मुआजिजात देखें। आजमाइश तुम्हें अल्लाह पाक से मिलवाती हैं, दर्द तुम्हें सजदों तक ले आती हैं, तकलीफें तुम्हें तहज्जुद तक ले आती हैं, जिंदगी की हर कमी तुमसे दुआएं करवाती हैं और हर दुख और मुश्किल तुम्हें जानमाज तक लाती हैं। और अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही सबसे ज्यादा आजमाता है, क्योंकि वो हमें अपने करीब देखना चाहता है। तो इसलिए अल्लाह पाक के करीब हो जाओ। जिस घड़ी में नसीब संवरते हैं, कुछ लोग तकिए पर सर रखकर सो रहे होते हैं और कुछ लोग मुसल्ले पर सर रखकर रो रहे होते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत ताबीर पाते हैं। आपका मुस्तकबिल आपका मुंतजर है, मुमकिन हो तो उसे रात के पिछले पहर में पा लीजिए। अल्लाह पाक नामुमकिन चीजों में नजर आता है, जब वो चीजें होती हैं जिनके होने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जब वो दरवाजे खुलते हैं जिनके खुलने की हमें उम्मीदें भी नहीं होती, जब वो रास्ते हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं जिसका हमें गुमान भी नहीं होता। यह हालात का बदलना, यह दरवाजों का खुलना, यह रास्तों का मंजिल तक ले जाना, आपको लगता है यह सब बिला वजह हो जाता है। वो जो रहमान है, सात आसमानों पर सहरक से भी ज्यादा करीब तर है। यह सारी पहेलियां उसी की हैं, इन पहेलियों के जवाब वो खुद देता है। बस जराए मुख्तलिफ होते हैं। ना होनी का होना वो तब ही करता है जब इंसान का यकीन जमीन और आसमान से बहुत वसी हो जाता है और फिर उस वसी यकीन में मोजिजे समाते हैं। फिर उन मोजिजों में रब नजर आता है। जब अल्लाह पाक किसी का ख्याल दिल में लाता है तो उसकी जगह नसीब में भी कहीं ना कहीं छुपा कर रखता है, और वो छुपी हुई चीजें तो बस उन्हीं को मिलती हैं जो दुआ करते हैं। दुआ वो सब कर सकते जो आप नहीं कर सकते। रात की तन्हाई में अल्लाह पाक से दुआएं मांगना, फिर भी कबूल ना होना, यहाँ तक कि थक जाना, टूट जाना कि अल्लाह पाक अब तो उम्मीद भी टूटती दिखाई देती है। यह आलम देखकर अल्लाह पाक कहता है और फिर कुन कह देता है, कबूलियत से नवाज देता है। मेरे बंदे उदास ना हो, मैं हूं ना तेरे साथ। तुम शिकवा करते हो कि तुम्हें तुम्हारी चाहत नहीं दी गई, वो तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। वो कैसे तुम्हें गलत दे, उसकी चाहत है कि तुम उसकी चाहत पर राजी हो जाओ कि वो तुम्हें फिर तुम्हारी उस चाहत से भी ज्यादा नवाज देगा। अल्लाह पाक के सुपुर्द करना सीखें हर चीज को, हर फैसले को। जब आप जानमाज पर बैठते हैं तो भारी दिल को खाली करके उठा करें। हर चीज अल्लाह पाक को सौंप कर उठा करें, क्योंकि जो हुआ अल्लाह पाक की रजा से हुआ, जो हो रहा है उसकी रजा से हो रहा है। फिर आप मुस्तकबिल की फिक्र क्यों करते हैं? नसीब लिखने वाले को नसीब का निगहबान रहने दें। आप उसके फैसलों पर सर झुकाकर इत्मीनान से चलते रहें। यकीन रखें उस पर, वो बेहतरीन ही करेगा। इंशाअल्लाह हिम्मत मत हारा करो, दुआ मांगते रहो जब तक जवाब नहीं मिल जाता। जब वो तुम्हें सब्र की इंतहा को ले आया है तो यकीन रखो कि आजमाइश अब खत्म होने वाली है और फिर हम हर उस चीज से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रातों को उठ उठकर झोली फैलाया करते थे। देखिए, अगर आज हमारी कुछ दुआएं अधूरी नहीं रहती तो शायद हमारे पास यह सब ना होता जो आज है। अब जब सारी हकीकत हमें समझ आ गई है तो हमें इन लाहासिल दुआओं का सोच कर खौफ आता है कि तब वो पूरी हो गई होती तो आज हमारी जिंदगी क्या होती, क्योंकि जो आज हमारे पास है वो हमारे मांगे हुए से बहुत बेहतर है और हमेशा
हमें हमेशा से यही चाहिए था, बस तब हम यह बात जानते नहीं थे, मगर अल्लाह पाक जानता था और उसने हमें वही दिया जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर भले वो चीज हमें शुरू में बुरी लगती थी, लेकिन अब हम उनके साथ बहुत खुश हैं और अब हमें समझ आ रहा है कि अल्लाह पाक से बेहतर फैसला किसी का नहीं होता। तवक रखो, क्योंकि अल्लाह पाक के मोजज़े तवक रखने वालों के लिए हैं, यानी तुम्हारे लिए सब्र और दुआएं करने वाले अल्लाह पाक को बहुत प्यारे होते हैं। अगर वो आजमाता है तो यकीन रखने वालों के लिए मदद भी भेजता है, सब्र करने वालों के लिए सिला भी तैयार रखता है। और जब तवक्कुल करो तो यह मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतजार करो कि जो वो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला वसीले बनाने वाली जात पर छोड़ दो। दिल से अल्लाह पाक का हर फैसला तस्लीम करना है। अल्लाह पाक का हर फैसला खैर और हिकमत से भरा हुआ होता है। हमने अल्लाह पाक की रजा खुश्ती में राजी रहना है। आजमाइश के मुकाबले में अजर भी बड़ा है। यकीनन अल्लाह पाक जब किसी कौम को पसंद करता है तो उसे किसी मुसीबत में मुब्तला कर देता है। चुनांचे जो अल्लाह पाक की तकदीर पर राजी रहा उसे अल्लाह पाक की रजा मिल जाती है, और जो अल्लाह पाक के फैसले पर नाराज हुआ अल्लाह पाक भी उससे नाराज भी हो जाता है। तुम क्यों हार मान रहे हो? तुम्हारे पास तो अल्लाह पाक है जिसके कब्जे में सारी कायनात है, जो बादशाहों का बादशाह है। याद रखें कि आप जितनी बार अल्लाह पाक के सामने हाथ उठाते हैं आपकी तकदीर उतनी बार बदल दी जाती है। अगर दुआएं कबूलियत में देर लगा रही हैं तो मायूस होने के बजाय दरूद शरीफ और अपनी दुआओं की मदार बढ़ा दो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी दुआओं पर कुन फरमा देगा। तुम मांगो, अल्लाह पाक से तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है उसे। तुम परेशान क्यों होते हो? क्या उसकी कुदरत पर यकीन नहीं तुमको? वो तुम्हारी सहरक से भी ज्यादा करीब है। वो जबरदस्त कुव्वत है जो आंख वाले को अंधा और अकल वाले को बेवकूफ बना देती, लेकिन दुआ वो शानदार कोशिश है जो उस कुव्वत पर हम अल्लाह पाक तो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ना तो वो हमें आजमाइश ही क्यों देता है? हम कहते हैं कि अल्लाह पाक तो जानता है कि हमें किस चीज की ख्वाहिश है, तो इंतजार ही क्यों करवाता है? बिन मांगे क्यों अता नहीं करता? जरा यह सोचिए आपकी अगर यह मामूली सी आजमाइश भी नहीं आती तो अल्लाह पाक से कैसे जुड़ पाते आप? अगर दुआ नहीं होती तो अल्लाह पाक से हम कलाम कैसे हो पाते आप? अल्लाह पाक मुख्तलिफ जरियों से आजमाता है, कभी लेकर तो कभी देकर, लेकिन याद रखिएगा आजमाता बस उन्हीं को है, अपने कुर्ब से नवाजना चाहता है। अगर अल्लाह पाक ने आपको आजमाइश दी है तो इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह पाक आपसे नाराज है या आपको सजा दे रहा है। आजमाइश का मतलब तो यह है कि अल्लाह पाक ने तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है। आप यह क्यों नहीं सोचते कि अगर अल्लाह पाक को सजा ही देनी होती तो वो फिर आजमाइश से निकालता ही क्यों? हाँ, यह बात सच है, आजमाइश में डालने वाला अल्लाह पाक है तो आजमाइश से निकालने वाला भी वही रब है। आजमाइश बजहर एक लफ्ज है, लेकिन दरअसल यह रब से जुड़ने का जरिया है। आप सोच भी नहीं सकते उसने कब कब आपको किस किस मुश्किलात से बचाया, बड़े से बड़े तूफान से किस तरह आपको महफूज रखा, जो दिन भर आपके गुनाह माफ करता है, जो दिन भर आपकी नाफरमानियां देखता है फिर भी आपसे मुंह नहीं मोड़ता, फिर भी आपके लिए फरिश्तों के हाथों रिज्क भेजता है, फिर भी आपके लौटने का इंतजार करता है। भला कौन कर सकता है किसी से इतनी मोहब्बत? जानते हो जब अल्लाह पाक नाराज होता है तो वो रिज्क नहीं छीनता, वो सजदे की तौफीक छीन लेता है। वो आसाइश नहीं छीनता, वो दिलों को खाली कर देता है, क्योंकि अल्लाह पाक तो दिल में होता है। जिस दिल में उसकी मोहब्बत नहीं वो दिल कैसे रोशन हो सकते हैं? जान लो आजमाइश वक्ती होती है। जितनी जल्दी आजमाइश से मायूस होने के बजाय रब से जुड़ जाएं उतनी ही जल्दी आजमाइश से दस्तबेदार भी हो जाओगे। एक बात हमेशा याद रखो, हजारों मसाइल का एक हल वो है तवक। जहाँ तवक हो वहाँ सिकवे नहीं होते, जहाँ तवक हो वहाँ दिल कभी बेसुकून नहीं होते। अगर फिर भी लगता है कि हम में हिम्मत बाकी नहीं तो जान लो वक्त आजमाइश अब बस खत्म होने को है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दिन भर हमारे लौटने का इंतजार करता है। हमारे इतने गुनाहों के बाद भी वो हमारे लिए तौबा का दरवाजा खुला रखता है, फिर भी हम इतने गाफिल हो गए हैं। आखिर क्यों? अल्लाह पाक दिन में 5 मरतबा हमें अपने करीब बुलाता है। दिलों के हाल अल्लाह पाक बेहतर जानता है।
और तकदीरों के खेल भी उसी के हाथ में हैं। तो फिर क्यों मुतमईन नहीं, क्यों सोचों में घिरे हुए हो, क्यों उसकी बादशाहत पर यकीन नहीं, क्यों उसके फैसलों पर राजी नहीं? जब अल्लाह पाक जानता है कि किस वक्त क्या बेहतर है, फिर दिल में वसवसों का सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए। अगर अभी भी सोचों में डूबे हुए हो, दिल बेचैन है, तो समझ जाओ तुम दिल से राजी नहीं। उसके फैसलों पर सिर्फ जुबान से कह देना तवक नहीं होता, बल्कि जुबान के इसरार से पहले दिल से राजी होना तवक होता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता हूँ। तो कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी आजमाइश खत्म नहीं हो सकती? अगर एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश आ रही है तो जान लो अल्लाह पाक तुम्हें मजीद अपने करीब करना चाहता है, तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है। वो जब तक आजमाएगा जब तक तुम मुकम्मल उसकी मोहब्बत से सुरखरू नहीं हो जाते। अल्लाह पाक की मोहब्बत इतनी खास है कि अगर इंसान नमाज पर सिर्फ सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उस रब ने परेशान दिल को यह समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। मोजजे होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, जख्म भर दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। बात तो सिर्फ ईमान, तबक और सब्र की होती है। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारी हर तकलीफ के बाद तुम्हारे लिए कितनी आसानियां लिख दी जाती हैं, तो तुम कभी भी अपने हाल पर नहीं रहोगे और बहुत जल्द अल्लाह पाक तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम खुश हो जाओगे। सब्र में सिकवा नहीं होता, बस खामोशी होती है, और उस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह पाक ही सुनता है। और वो फरमाता है, एह सकती बस कुछ ही वक्त की बात है, सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को उनके गुमान से बढ़कर अता करता हूँ। दुआओं से फौरन मोजे नहीं हो जाते, दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें उस मुकाम तक लेकर जाती हैं जहाँ मोजे होने होते हैं, जहाँ तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह पाक कुन फरमा देता है। और जिस दिन अल्लाह पाक तुमसे राजी हो गया, उस दिन तुम अपनी इन उदास आंखों से अपने नसीब का बदलना देखोगे और खुश हो जाओगे। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है, फिर वो कभी भी अधूरी नहीं रहती। जो नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ का है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह पाक से कुन कहने की सिफारिश करता है। फिक्र न करें, सब्र करें, अल्लाह पाक आपको वो मुकाम देगा जो अभी तक नामुमकिन है। जब तक इंसान टूटता नहीं है उसमें आजीज नहीं आती है। दिल में नूर तभी आता है जब वो टूटता है। जब इंसान ठुकराया जाता है तभी वो अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो टूट कर अपने रब से जुड़ जाते हैं और उनके दिलों को मेरा अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत अता कर देता है। फिर वो दुनिया से भी नियाज हो जाता है। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ अल्लाह पाक ही सुनता है। गिरते आंसू और टूटे हुए दिल की कदर अल्लाह पाक से बेहतर कोई भी नहीं जानता। दुआ के साथ ऐसा जुड़ जाओ कि गोया उसके अलावा कोई इलाज आप जानते ही नहीं। दुआ मुकद्दर नहीं मांगती, तसल्ली मांगती है। ऐ अल्लाह, मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमा और मेरे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो जाए और मुझे जहनी सुकून अता कर और मेरे तमाम मामलात को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं पर कभी शक न करना, क्योंकि अल्लाह पाक कादिर है नसीब बदलने पर, नामुमकिन को मुमकिन कर देने पर, बंद राहों को खोल देने पर। परेशान ना हो, बस यकीन के साथ दुआ करते रहो। हर ला हासिल जल्द हासिल हो जाएगा। अल्लाह पाक के फैसलों पर मुतमईन रहे, क्योंकि अल्लाह पाक वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह पाक वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिसकी नमाज अच्छी उसकी जिंदगी अच्छी, जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी मौत अच्छी उसकी कब्र अच्छी, जिसकी कब्र अच्छी उसकी आखिरत अच्छी, जिसकी जन्नत पक्की। दिल मुश्किल में डूबा हो, सोच फिक्र में उलझी हो, तो अल्लाह पाक से दुआ करना और इतना तवक्ल जरूर करना कि वो रब तुम्हारी दुआओं को ध्यान से सुनता है और जवाब भी देता है। वो जाया नहीं जाने देगा उन दुआओं को जो खुलूस दिल से मांगी जाएं। कुरान का सफर आपकी इबादत को हर दिन बेहतर करता है, आपके सवालों के जवाब देता है, आपके हर गम पर तसल्ली देता है, आपको रिश्ते निभाना सिखाता है, आपको मुश्किल में बहादुर रहना सिखाता है। जो शिद्दत से मांगा जाए वो जरूर मिलता है। अल्लाह पाक आपकी तरफ जाया नहीं जाने देता, वो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ है और अगर नसीब में बेहतर हुआ तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। दुआओं में हकीकत पसंदी से काम नहीं लेते। अल्लाह पाक से मांगते हुए अपनी दुआओं को महदूद नहीं करते। जब उस बादशाह से मांगते हो तो खुलकर मांगते हैं, फिर मुमकिन या नामुमकिन का नहीं देखते। फिर यह नहीं सोचते कि आपकी दुआओं और आपके दरमियान कितने बुलंद
हाल रुकावट बनकर खड़े हैं, या फिर कितने मीलों के फासले हैं, या फिर कितनी खाया उबी करनी है अभी बाकी नहीं। जब तवक्क करते हैं तो फिर यह सब नहीं देखते, बस फिर असबाब बनाने वाले की तरफ देखते हैं और उसकी शान और उसकी कुदरतों को जहन में रखकर उससे इल्तिजा करते हैं। जब अल्लाह पाक से उम्मीदें जोड़ते हैं तो फिर टूटने का खौफ नहीं रखते, क्योंकि आपके और आपकी दुआओं के दरमियान सारा मामला बस एक हुक्म का है, कुन हो जा फयकुन, तो वही हो जाता है। जब हालात कंट्रोल से बाहर होने लगे, मुश्किलात सुलझ ना सके और हालात में बेहतरी आती नजर न आ रही हो, तो मायूस होने के बजाय उस मोमिन की तरह हिम्मत करके अपनी सकत जितनी कोशिश करके अपने मामले को अल्लाह पाक के सुपुर्द कर देना चाहिए। जब अल्लाह पाक इंसान पर कोई मुश्किल भेजता है तो उस मुश्किल के साथ कोई न कोई ऐसी आसानी भी भेज देता है जो इंसान को उस मुश्किल वक्त में आगे बढ़ने में हिम्मत देती है। कभी वो आसानी किसी इंसान की सूरत में होती है, कभी वो आसानी किसी अजनबी शख्स की तहरीर की सूरत में होती है। उसे आप तक पहुंचाने वाला अल्लाह पाक है, क्योंकि अल्लाह पाक जानता है और वो अपने बंदे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। पता है अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदे कौन से होते हैं, वो जो हर परेशानी को अपने लिए सिग्नल समझते हैं, जो किसी भी मुसीबत के आने के बाद यह सोचे कि कहीं अल्लाह पाक से ताल्लुक में फर्क तो नहीं आने लगा था। वो परेशानी फौरन उनको डरा देती है कि कहीं अल्लाह पाक से दूरी तो नहीं हो रही। वो परेशानी उन्हें वापस अल्लाह पाक की तरफ लाती है। वो अल्लाह पाक से यह सब परेशानियां फिर शेयर करते हैं, वो एक एक बात उसे बताते हैं। तब वो अल्लाह पाक के भी पसंदीदा बंदे बन जाते हैं। तब अल्लाह पाक भी उनका खास इंतजार करता है, तब अल्लाह पाक भी उनसे मुलाकात का इंतजार करता है। तब कोई मुश्किल नहीं रहती, तब वो मदद बन जाती है, तब वो एक लिंक बन जाती है अल्लाह पाक और बंदे के दरमियान। तब परेशानी नेमत का रूप धार लेती है। पता है उस प्यारे से ताल्लुक का नक्शा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बयान करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बारे में मेरा बंदा जो गुमान करता है मैं उसको पूरा करने के लिए उसके पास होता हूँ। जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं उसे दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे भरी मजलिस में याद करता है तो मैं उनकी मजलिस से अच्छी मजलिस में उसे याद करता हूँ। अगर वो मेरे करीब आता है तो मैं एक हाथ उसके करीब जाता हूँ, और अगर वो एक हाथ मेरे करीब आता है तो मैं दोनों हाथों की पूरी लंबाई के बराबर उसके करीब आता हूँ। अगर वो मेरे पास चलता हुआ आता है तो मैं दौड़ता हुआ उसके पास जाता हूँ। और पता है इस ताल्लुक बन जाने के बाद क्या होता है। अब आता है दुआओं में तासीर वाला मामला। जब आप किसी से अपनी कोई परेशानी शेयर करते हैं और वो तहम्मुल से आपकी बातें सुनता है और आपको यह महसूस भी नहीं होने देता कि वो आपकी बातों से तंग हो रहा है, बल्कि वो आपके एक एक लफ्ज को पूरी अहमियत से सुनता है, और वो कुछ ना भी करे तो क्या होता है, आपकी नजरों में उसकी अहमियत कितनी हो जाती है। आप ना चाहते हुए भी उसके हो जाती हैं। आप खुद ब खुद करते हैं। आप चाहते हैं जिस तरह उसने आपको अहमियत दी आप भी उसे अहमियत दें, उसकी तारीफ करें ताकि वो आपसे खुश हो और बोर ना हो। पता है अल्लाह पाक से ताल्लुक भी ऐसे ही बनाते हैं। दुआ मांगने यानी अल्लाह पाक से ताल्लुक बनाने का सबसे पहला उसूल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया था। जब आप अल्लाह ताला की हमद बयान करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके एहसानात को महसूस करके उसके दिल से शुक्रगुजार होते हैं, तब आपका उससे पक्का वाला ताल्लुक बन जाता है। अल्लाह पाक ने आपको खुश किया, आपने उसको राजी कर लिया। क्या उससे बेहतर ताल्लुक भी कभी बना है? यही वो ताल्लुक था जो आपसे उससे मांगने से पहले बनाना था। यही तो दुआ का असल मकसद था। दुआ के मायने है पुकारना अपनी तरफ। ये क्या हुआ? दुआ ही तो है। अल्लाह पाक तो हर काम शुरू करने से पहले गवाह बना रहा है। क्या कर रहे हैं? दुआ ही तो कर रहे हैं। तो दुआ का पहला अदब जो हमने सीखा वो यह है कि अल्लाह पाक से सबसे पहले ताल्लुक बनाना है और फिर उसकी हमद बयान करनी है, उसकी हर तरह से तारीफ। वो अलवकील है तो सिर्फ वही शासक है, वही कुव्वत वाला है। वही दोस्त वो जो अलकादिर है तो सिर्फ वही कुदरत वाला है। वो जो अलमुजीब है तो सिर्फ वही जवाब देने वाला है और कबूल करने वाला है। जब आप उसकी तारीफ करके बड़े अदब से तहम्मुल से अपनी इल्तिजा उसके सामने पेश करती हैं तो सोचिए जरा आगे क्या होगा। क्या आप अल्लाह पाक का आपके इस अमल पर रद्द अमल महसूस कर सकती हैं? इतने प्यार का जवाब वो अल्लाह पाक कैसे देगा? सोच दोबारा
क्या वो रद्द करने का सोचेगा भी? आपकी इल्तिजा और आपको शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अल्लाह पाक से कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी, आप अल्लाह पाक से सब कुछ मांग सकते हैं। अल्लाह पाक ने आप अल्लाह पाक से अल्लाह पाक को मांगा तो क्या उसने अपने राब्ते से नहीं नवाजा? उसने अपना आप नवाज दिया। वो क्या छोटी सी हकीर सी आपकी इल्तिजा और दुआ आपको नहीं देगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है, जैसे मेरे बंदे का मेरे बारे में गुमान होता है, मैं वैसे ही उसके साथ पेश आता हूँ, और जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। दुआ की कबूलियत का आखिरी उसूल पता है क्या है? अपनी की गई दुआ पर मुकम्मल तौर पर यकीन। ज़ाहिरी यकीन भी कब आएगा? जब अल्लाह पाक से ताल्लुक बन चुका होगा। दुआ पर यकीन का मतलब यह है कि आप जल्दबाज नहीं बन रहे, आप दुआ मांगने के बाद पुरसुकून हो गए हैं। आप बार बार इस परेशानी में नहीं खुल रहे कि पता नहीं दुआ कब कबूल होगी। ऐसा करेंगे तो खत्म है, फिर दुआ कैसे कबूल होगी? अगर अल्लाह पाक पर तिरस हटा लिया, अगर उसे नाराज कर दिया, दुआ उस वक्त तक कबूल होती है जब तक वो जल्दी ना करे। जल्दी करने की सूरत यह है कि वो यह कहना शुरू कर दे कि मैंने अपने रब से दुआ की लेकिन उसने मेरी दुआ कबूल नहीं की। आपको पता है सब्र कभी भी जाया नहीं जाता। आपका सब्र, वो जो आप दिल को मार के करते हैं, वो जो आप सिर्फ अल्लाह पाक के लिए करते हैं, पता है सब्र आपको बचा लेता है एक बहुत बड़े तूफान से, गुनाहों के तूफान से, मायूसी के तूफान से। जब कोई मुसीबत आती है और आप सब्र करके चुप हो जाते हैं और आप किसी से शिकवा नहीं करते, आप किसी के आगे किसी की गीबत नहीं करते, आप किसी की अपनी तकलीफ बसाने के बजाय अल्लाह पाक के आगे रो लेते हैं, तो आपको नहीं लगता आप खुद को मायूसी से बचा रही हैं? क्योंकि जब आप तकलीफ में होते हैं और आप बिना सोचे समझे अपने दिल की बातें किसी के आगे खोल देते हैं और बाद में एहसास होता है कि उनकी तो कदर ही नहीं की गई, दूसरों के लिए वो सब बेकार था। किसी ने तो आपकी बताई बात को राज रखने के बजाय किसी और के आगे खोल दिया और बदगुमानी फैल गई और यूं नई तकलीफ का एक नया तूफान आप पर आ पड़ा। सब्र न करने से तकलीफ डबल हो जाती है, लेकिन सब्र पता है क्या है करता है? सब्र पिछली तकलीफ को भी मिटा देता है। सब्र आप पर बीती हुई मुसीबत को भुला देता है। जब आप सिर्फ अल्लाह पाक के आगे रोती हैं, सिर्फ उसी को अपने दुख सुनाते हैं, तब आपके दिल को सुकून से भर दिया जाता है। अल्लाह पाक से बातें करना आपको मायूसी से निकाल देता है। अल्लाह पाक से सब शेयर करना आपको गुनाहों से भी बचाता है। आप गीबत जैसे गुनाह से बच जाते हैं। सब्र क्या क्या नहीं करता। सब्र के अजर तभी तो इतने ज्यादा हैं, यह अपने अंदर अजर के बहुत सारे पहलू छुपाए हुए हैं। सब्र गुनाहों से बचाता है। सब्र मायूसी से निकाल कर शुक्र तक ले जाता है और शुक्र तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मिलवा देता है। तो फिर क्यों शक है आपको अपने सब्र की ताकत पर? यह वाकई एक बहुत बड़ा खजाना है, उसे खोने ना दें, उसे थामे रखें। यह आपकी इस भलाई के लिए है, सिर्फ आपकी भलाई के लिए। जानते हो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए मदद कब भेजता है? जब तुम्हें बेबसी हर तरफ से घेर लेती है, जब तुम नामुमकिन के बावजूद भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते, जब तुम लोगों के इनकार के बाद भी अल्लाह पाक पर यकीन रखते हो, जब तुम सजदे तवील कर लेते हो और शिकवे मुख्तसर, तब अल्लाह पाक तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बनाता है जो किसी के इल्म में नहीं होते। जब मामलात अल्लाह पाक के कुन पर आ जाते हैं, तब दुनिया की बातें मायने नहीं रखती। अल्लाह पाक की मदद तब आती है जब इंसानी ताकतें हार जाती हैं। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।